Hello friends, today we will start single phase AC circuit. AC means alternating current. In alternating current we have single phase, two phase and three phase. But इस चैप्टर में हम लोग सिंगल फेज की बात करेंगे. Alternating current is different from DC current. DC means direct current, which is constant throughout the time. In AC, the value of magnitude and the direction of current and voltage is not constant. It changes at a regular interval of time. Means जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं. अब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट कैसे होता है, अब यहाँ देखेंगे हम. ये देखिए, जैसे एक रोटेशन of a coil in a stationary magnetic field or rotating a magnetic field with a stationary coil means when there is a relative motion between the coil and the magnetic field, then the EMF will induced or the voltage will induced. यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और उसमें एक कॉइल जो है वो रोटेट हो रही है. तो जैसे जैसे रोटेशन हो रहा है वैसे वैसे आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी से. सो आप देखेंगे कि जब ये जीरो पोजीशन पे है नॉर्थ टू साउथ, इसके बीच में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा. लेकिन जब 90 डिग्री पे आती है और 180 डिग्री पे आती है तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो मैक्सिमम होगा. The voltage that changes polarity and magnitude at a regular interval of time is called an alternating voltage. Similarly, the direction of current is changed and the magnitude of current change with time is called alternating current. The alternating current, it travels sinusoidal wave and complete one cycle. In one cycle, it is having positive as well as a negative. This is a positive direction and this is a negative direction. तो हम देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन में जब ये मूव कर लेता है टिल 360 डिग्री तो एक साइकिल कंप्लीट होता है. ठीक है, सो इट इज हैविंग अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. सो द वैल्यूज ऑफ द instantaneous values of the voltage and current are V is equal to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t. So this is the EMF induced or the voltage and the current induced in the AC. Now, before we move further, we must know some AC terms. Cycle. What is cycle? A complete set of positive, negative and zero values of an alternating quantity is called one cycle. This a complete set of positive, negative and zero values of an alternating quantity is known as one cycle. Here we are using a term alternating quantity. Alternating quantity means it may be a voltage or it may be a current. Amplitude. The maximum value of alternating quantity is called amplitude. It may be positive or it may be negative, just like this. This is the amplitude. So this is the maximum value we have in the positive direction and this is the maximum value we have in the negative direction. Instantaneous value. The value of an alternating quantity at any particular instant is called instantaneous value. यहाँ देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. यदि हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बात करें तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. टाइम पीरियड. It is the duration of time required for an alternating quantity to complete one cycle. Right? To complete one cycle. एक cycle complete करने में उसको जितना वक्त लगेगा that is known as a time period. ठीक है? Alternating है. Either it is a voltage or it is a current. Frequency. It is the number of cycles that occurs in 1 second. Its unit is hertz. The unit of time period is second and the unit of frequency is hertz. तो एक सेकेंड के अंदर जितने साइकिल कंप्लीट होंगे
एक सेकंड में जितनी बार ये वेव इतने ऐसे से मूव करेगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज द एवरेज वैल्यू. It is the arithmetic sum of all the values divided by the total number of value used to obtain the sum. जैसे हम आपसे बोले किसी चीज का आपको एवरेज वैल्यू निकालनी, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटीज होती हैं उन सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एवरेज मिलता है. ठीक है, जैसे दो नंबर्स का एवरेज निकालना है, मान लीजिए 15 और 25 का, तो आप क्या करेंगे, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है यदि, तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आई हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू ऑब्टेन द सम. ठीक है, अब हमें आई मान लीजिए करंट का निकालना है, आप चाहे वोल्टेज निकालें चाहे करंट, सेम. सो आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to I dt. ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि सम करना है हमें, कितने के लिए, 1 to t. t इज द टाइम पीरियड, I इज द करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट लिया हमने और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर. अब सिंस द एरिया अंडर अ साइन वेव ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0, ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव. और यदि हम इस वेव फॉर्म को देखें तो इसमें जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, यदि उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0. सो 0 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 50 वैल्यूज हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 50 यू विल गेट द 0. तो हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे हम लोग हाफ साइकिल के लिए. ठीक है, तो यदि अब हमें इसे हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई, हाफ साइकिल के लिए जा रहे हैं 0 to पाई आई डी थीटा. Okay, what is I? I is equal to Im sin theta. That is the instantaneous value of the current. So now when you integrate this, what you will get? You will get Im by pi. This Im is constant. So Im upon pi. Sin theta is minus cos theta. कहाँ से? 0 to pi. What is the? This is the limit. So Im upon pi. Put the values of 0 and pi. What you will get? You will get plus 1 minus 1. तो कितना हो गया? 2 हो गया. So 2 Im upon pi, right? So it is 0.637 Im. What is Im here? Im is the maximum value, that is the amplitude. जो हमें maximum value होगी, that is the amplitude of the current. So I average हमें क्या मिलेगा, 0.637. वैसे ही हमें V average भी, यदि हम वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, 0.637 Vm. Next is the root mean square value. So what is root mean square? It's the RMS values भी बोला जाता है इसको. So root mean square, or it's a square root of average values of square of alternating quantity over a time period. क्या है? Square root, this is the square root of average values. Average value means we are integrating of square, स्क्वायर कर रहे हैं उसका हम, ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर अ टाइम पीरियड, एक पूरे टाइम पीरियड, 0 to 2 पाई ले रहे हैं अब हम लोग. अब हम लोग 0 to पाई क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा. तो हम इसको पूरे एक साइकिल के लिए ले सकते हैं. तो अब हम यदि इसको सिंप्लीफाई करें या इंटीग्रेट करें, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा थ्री. पुट द वैल्यूज ऑफ दिस आई. इसको आरएमएस को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं या बोला जाता है. क्या है आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट करंट. आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या है, उस डायरेक्ट करंट के बराबर है, which when allowed to flow through a given circuit for a given time produces the same amount of heat as produced by the alternating current when allowed to flow through the same circuit for the same time. मतलब एक डीसी सर्किट में जो करंट फ्लो कराया जाए, यदि सेम सर्किट में, मतलब उसकी रेजिस्टेंस सेम हो, उसका वोल्टेज सेम हो, उसमें जो डीसी करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक. सो आई आरएमएस, उसका कंटिन्यूएशन में हम इंटीग्रेशन करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, आई एम डिवाइडेड बाय रूट 2.
So IRMS is IM divided by root 2. So next is the form factor. It is the ratio of RMS value to the average value of an alternating quantity, right? KF that is RMS value, इसको KF से डिफाइन कर फॉर्म फैक्टर है F बोलते हैं, डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू. RMS वैल्यू क्या आई? सपोज करंट की बात करें तो IM by root 2. एवरेज वैल्यू क्या हुई थी? IM upon pi by 2. सो फॉर्म फैक्टर इज 1.11. तो किसी भी, चाहे वो आपका वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उसका फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.1 आएगा. पीक फैक्टर की बात करें तो KA, it is the ratio of peak value of RMS value of an alternating quantity. Peak value, maximum value to the RMS value, IRMS. तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? K is equal to 1.414. So these are the terms we must know